students, how are you all? I hope you all must be going very well. Welcome back to the channel with the new chapter of class 5th science, chapter number 12, that is about natural disasters. So students, natural disasters are the natural calamities or any kind of phenomena due to which the nature suffers or the human life and the property suffers. All right, and they occur naturally, so we do not have any control over them also. So in this session we are going to learn about the earthquake. Means, first of all, we learn that what is an earthquake. Then secondly, we will learn about some tsunami and also the flood and drought. All of these are what? These are the natural disasters only, which we are going to discuss in this session today. All right. First of all, we have to identify the following natural disasters and write their names. So, in the first picture, you can see this is what it is, a natural disaster named as forest fire. All right. So, we'll write over here forest fire. Secondly, you can see over here it's what? Flood. ठीक है, इस नेचुरल डिजास्टर को कहा जाता है फ्लड, जहाँ पे एक्सेस अमाउंट ऑफ रेनफॉल होता है. Then third is the natural disaster known as hurricane. All right. So right over here, HURRICANE, hurricane. Then next you can see is what? This is known as volcanic eruption. All right. So right over here, volcanic eruption. All right. Chala. Then next, this is what it is known as landslide, which usually occurs in the hilly areas. All right, this is what? Landslide. And the last we have is what? This is your earthquake. Right over here, earthquake. That now, let's proceed further. So the earth generally is a beautiful and safe place to live in, but sometimes natural disaster can disrupt our life. We have no control over these calamities, but we can take precautionary measures to protect ourselves from these disasters. What this students कि अर्थ जर्नली क्या है, एक बहुत ब्यूटीफुल एंड एक सेफ प्लेस है, बट स्टिल कभी कभी कुछ नेचुरल कैलमिटीज ऐसी होती है जिसकी वजह से हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है ऑन द अर्थ. All right, and we have no control because as I told you, ये natural phenomena है, हमारा इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है, बट स्टिल हम कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं सो दैट हम इन नेचुरल डिजास्टर से होने वाले जो डैमेजेस है उनसे खुद को प्रोटेक्ट कर सके समवॉट. ऑलराइट, सो सम ऑफ दीज डिजास्टर्स में से कुछ डिजास्टर्स के नेम तो आपको यहाँ पे गिवन है, लाइक वी हैव वोल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक, फ्लड एंड टाइडल वेव्स. एंड these happen due to, ये क्यों होते हैं ये सारे natural disasters? Due to disturbances within the earth. अर्थ के अंदर जब कुछ disturbances होते हैं उनकी वजह से ये natural disasters occur करते हैं. Alright. So first of all we have the natural disaster earthquake. So earthquake occurs when two large blocks of the crust suddenly slip past one another. As we know, crust is the outermost layer of the earth. Right. So जब दो बड़े बड़े blocks क्रस्ट के आपस में क्या करते हैं, स्लिप करते हैं, वो भी सडनली. Alright, then the earthquake occurs and the surface, उस पर्टिकुलर सरफेस पे जहाँ पे वो दो क्रस्ट सडनली स्लिप करेंगे, that is called fault or the fault plane. Alright, the location below the earth surface के below वो लोकेशन जहाँ पे earthquake start होता है, that is called hypocenter. And the location directly above the hypocenter, ठीक है, hypocenter से just above, जो directly above location है earth surface पे, that is called epicenter. Then the largest और main earthquake, जो सबसे largest या जो main earthquake होता है, that is called main shock. Main shocks always have aftershocks. ठीक है, main shocks के बाद हमेशा क्या होते हैं, aftershocks आते हैं. And these are smaller earthquakes. ये जो आफ्टर शॉक्स हम फील कर सकते हैं, ये छोटे छोटे से अर्थक्वेक्स होते हैं जो
यूजुअली कब अकर करते हैं? आफ्टरवर्ड्स, ठीक है, बाद में आपको फील होंगे सेम प्लेस पे एज अ मेन शॉक, जहाँ पे मेन शॉक फील किया था उसी सेम प्लेस पे हम बाद में कुछ स्मॉलर अर्थक्वेक्स को फील कर पाते हैं विच आर नोन एज आफ्टर शॉक्स। ऑलराइट, चलो नाउ डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द मेन शॉक, ये मेन शॉक का कितना साइज है इस बेसिस पर आफ्टर शॉक्स जो है वो वीक्स तक कंटिन्यूड रहते हैं, ठीक है। चलो, मंथ्स और इवन ईयर्स आफ्टर द मेन शॉक, अगर मेन शॉक बहुत ज्यादा सीवियर है सो आफ्टर शॉक्स जो है हमें इवन कुछ ईयर्स बाद भी फील होते हैं एट द प्लेस ऑफ मेन शॉक। नाउ व्हाट कॉजेस अर्थक्वेक एंड वेयर डू दे हैपन? अब अर्थक्वेक किस वजह से होता है, कहाँ पर होता है? सो एज आई टोल्ड यू, अर्थ हैज 4 मेजर लेयर। अर्थ की कितनी 4 मेजर लेयर्स होती है? इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। एंड क्रस्ट जो है, ठीक है, वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है एंड मेंटल लेयर से अबव होती है, ठीक है। इट मेक अ थिन लेयर ऑन द सरफेस ऑफ अवर प्लैनेट, बट दिस लेयर इज नॉट ऑल इन वन पीस, ठीक है। ये पूरी जो लेयर है केवल एक ही पीस में नहीं होती है, ये काफी सारी पीसेस से मिलकर बनी है। एंड ये पीसेस जो है दे कीप मूविंग अराउंड, ये क्या करते हैं? कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं एंड दे स्लाइड पास्ट वन अनदर एंड बम्पिंग इनटू ईच अदर। नाउ दीज पीसेस स्टूडेंट्स, ये जो पीसेस है क्रस्ट लेयर के, व्हाट वी कॉल देम? वी कॉल देम टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है। एंड इन बेस की जो एजेस होती है दे आर कॉल्ड प्लेट बाउंड्रीज। नाउ द प्लेट बाउंड्रीज आर मेड अप ऑफ, अब ये जो प्लेट बाउंड्रीज है ये किसकी बनी है? मेनी फॉल्स, काफी सारे फॉल्स से मिलकर बनी है। एंड मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक, ज्यादातर जितने भी अर्थक्वेक्स है अराउंड द वर्ल्ड, हाउ डू दे अकर? दे अकर ऑन दीज फॉल्स ओनली, राइट। नाउ सिंस द एजेस, एज आई टोल्ड यू, क्योंकि ये जो प्लेट्स की एजेस होती है ये काफी रफ होती है, राइट, सो दे स्टक व्हाइल द रेस्ट ऑफ द प्लेट्स कीप्स मूविंग। तो कुछ प्लेट्स ऐसी होती है जो कभी कभी क्या हो जाती है? आपस में स्टक हो जाती है, मीन्स बाकी सारी जो प्लेट्स है वो मूव कर रही है, कुछ प्लेट्स की एजेस ज्यादा रफनेस की वजह से कभी कभी स्टक हो जाती है, ऑलराइट। एंड फाइनली जैसे ही ये प्लेट एक दूसरे को क्या स्टकनेस की वजह से एक दूसरे को क्या पुश करके आगे की तरफ फर्दर मूव करने की कोशिश करेंगी, व्हेन द प्लेट हैज मूव्ड फार इनफ, तो वो एजेस आपस में क्या हो जाती है? एक दूसरे से अनस्टिक हो जाती है, ऑलराइट, ऑन वन ऑफ द फॉल्ट। एंड तब वहां पे हमें एक अर्थक्वेक, एक सडन शेक फील होता है ऑन द अर्थ सरफेस, ऑलराइट। सो दिस इज हाउ द होल डिजास्टर नोन एज अर्थक्वेक अकर्स। नाउ मेजरिंग अर्थक्वेक, कैसे हम अर्थक्वेक को मेजर कर सकते हैं स्टूडेंट्स? सो अर्थक्वेक को मेजर या रिकॉर्ड किया जाता है बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सीस्मोग्राफ, ठीक है, सीस्मोग्राफ का यूज किया जाता है। एंड द रिकॉर्डिंग दे मेक, जो रिकॉर्डिंग अर्थक्वेक की सीस्मोग्राफ पे करी जाती है दैट इज कॉल्ड सीस्मोग्राफ। द साइज ऑफ द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के साइज को कहा जाता है इट्स मैग्नीट्यूड। एंड जो मैग्नीट्यूड होता है अर्थक्वेक का वो किस पर? एक स्केल है नोन एज रिचर स्केल, इस पे मेजर किया जाता है। इस स्केल को इन्वेंट करने वाले जो पर्सन थे, हिज नेम वाज चार्ल्स रिचर। एंड व्हेन डिड ही इन्वेंटेड दिस स्केल? इन 1935, ऑलराइट। नाउ कैन वी प्रेडिक्ट अर्थक्वेक? क्या हम अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट कर सकते हैं? सो साइंटिस्ट हैव ट्राइड मेनी वेज ऑफ प्रेडिक्टिंग अर्थक्वेक बट नन हैव बीन सक्सेसफुल, ठीक है। अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट करने के काफी सारे तरीके साइंटिस्ट ने ट्राई करे बट अभी तक कोई भी एक ऐसा लघु मेथड मिला which was successful, alright। On any particular fault, scientists know there will be another earthquake sometime in the future, but they cannot predict when it will occur, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर फॉल्ट पर साइंटिस्ट इतना तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई फ्यूचर में इस फॉल्ट पर अर्थक्वेक आने के चांसेस है, बट कब आएंगे एग्जैक्टली या एक्यूरेटली उस टाइम को प्रिडिक्ट करना इज स्टिल नॉट पॉसिबल बाय द साइंटिस्ट, ठीक है। नाउ इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, अब अर्थक्वेक के इफेक्ट्स क्या क्या है? सो अर्थक्वेक सेंड शॉक वेव स्ट्रॉन्ग इनफ टू ऑल्टर द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थक्वेक्स क्या करते हैं? अर्थ सरफेस को क्या करने के लिए? ऑल्टर करने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग शॉक वेव सेंड करते हैं, जिससे क्या जो क्लिफ्स है दे थ्रस्ट अप एंड ऑल्सो ओपनिंग द ग्रेट क्रैक्स इन द ग्राउंड। सेकेंडली इससे क्या होता है? अर्थक्वेक से डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ, इंफ्रास्ट्रक्चर,
ठीक है, एंड ऑल्सो कॉज ग्रेट कैप डैमेज। इसके अलावा जो बिल्डिंग्स है वो कोलैप्स हो जाती है, या जितने भी अदर मैन मेड स्ट्रक्चर्स है ये सब भी कोलैप्स हो जाते हैं। दे ऑल्सो गेट डैमेज ड्यू टू द अर्थक्वेक्स। इट ऑल्सो कॉजेस, इसके अलावा स्टूडेंट, स्नो एवलांचेस, लैंडस्लाइड, सुनामीज एंड वॉल्केनिक इरप्शन। यानी कि जो बाकी अर्थक्वेक्स है, सॉरी, बाकी डिजास्टर्स है, दे कैन ऑल्सो अकर ड्यू टू एनी सीवियर अर्थक्वेक। Alright? Now you can see this is the damage which is caused due to an earthquake only. Now safety procedures during earthquake. अब हम क्या क्या safety measures या procedures को follow कर सकते हैं during earthquake. So number one, if you are inside your house, अगर आप अपने घर के अंदर हैं, so do not run out of the building. Building से बाहर नहीं जाना. Secondly, get under a bed. किसी एक बेड के अंदर या टेबल के नीचे आप चले जाएं. अपने हेड एंड फेस को कवर करना चाहिए with the help of pillow, helmet, blanket, etc. Alright? And also to protect yourself from falling debris. Never use the lift. कभी भी आप लिफ्ट का यूज नहीं करेंगे during the earthquake. ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी जो है क्या हो सकती है, जा सकती है उस टाइम पे, and you can suck in the lift. इफ यू आर आउटसाइड, अगर आप घर से बाहर हैं तो आप एक सेफ प्लेस पे रहेंगे जब तक अर्थक्वेक स्टॉप नहीं हो जाता. ठीक है, एंड व्हाट यू हैव टू अवॉइड इज दैट किसी भी वॉल, बिल्डिंग, लैम्प पोस्ट, पावर पोल एक्सेट्रा, इन सबके नियर बाय आप कहीं भी स्टैंड या खड़े नहीं होंगे. ऑलराइट. Now next we come to the another disaster known as volcano. So volcano is an opening in a planet's crust through which molten rocks, hot gases and other materials erupt. ठीक है, हमारे अर्थ, हमारे प्लैनेट के क्रस्ट में जब एक ओपनिंग हो जाती है नेचुरली, जिसकी वजह से जो अंदर मोल्टन रॉक्स हैं, हॉट गैसेस हैं या अदर मटेरियल विच इज प्रेजेंट इनसाइड द प्लैनेट, इट ऑल गेट्स इरप्ट आउटसाइड इट. ठीक है, उस ओपनिंग के थ्रू, दैट इज कॉल्ड वॉल्केनो. एंड द मैग्मा, वो मैग्मा जो आपके अर्थ सरफेस तक आता है उसे कहा जाता है लावा. एंड जिस पैसेज के थ्रू वो बाहर ट्रैवल करता है दैट इज कॉल्ड वेट. The types of volcano, so basically two different types of volcanoes are there. Number one, active volcano, and the other is extinct volcano. First of all, we have active volcano. So of active volcano, the name, from the name only we could suggested कि ये volcano active होते हैं and ये कभी भी किसी भी टाइम पे इरप्ट हो सकते हैं, या हो सकता है रिसेंट पास्ट में ही इरप्ट हुए हों. ठीक है, एंड फ्यूचर में भी इनके कोई भी फिक्स चांसेस नहीं है, कभी भी इरप्ट हो सकते हैं. मींस दे आर एक्टिव ऑल द टाइम. ठीक है, may erupt any time or has erupted in recent past. An active volcano might be erupting. So active volcano erupting भी हो सकता है या dormant. Dormant means what? कि काफी टाइम से erupt नहीं हुआ है, ठीक है, recent past में, बट ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में नहीं होगा, हो सकता है. ठीक है, उसे कहा still dormant. Now erupting volcano, see they have given erupting volcano कौन सा होता है, जो एक active volcano है and उसमें eruption already चल रहा हो. Example, Etna of Mediterranean Sea. Alright, बट डॉर्मेंट वॉल्केनो कौन से होते हैं? एक्टिव वॉल्केनो, ऐसा एक्टिव वॉल्केनो जो इरप्टिंग नहीं है बट अगेन इरप्ट हो सकता है. ठीक है, एग्जाम्पल फुजियामा जो कि आपके जापान में है. नेक्स्ट वी हैव एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज. एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज ऐसे वॉल्केनोज है विच हैव नॉट इरप्टेड फॉर एटलीस्ट 10,000 ईयर्स, जो पिछले 10,000 सालों से अभी तक इरप्ट नहीं हुए हैं, एंड ना ही एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कंपेरेबल टाइम में यानी कि आने वाले फ्यूचर में इरप्ट करेंगे, ऐसा भी उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है. ऐसे वॉल्केनोज को व्हाट वी कॉल देम एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज. ऑलराइट, एग्जांपल म्यांमार में है एक वॉल्केनो पोआक. ऑलराइट, देन माउंट एजिनोंट इन न्यूजीलैंड. So basically how many types of volcanoes we have discussed it, that is the active, dormant and extinct. Now what causes volcanoes? अब किसकी वजह से volcanoes का eruption होता है? See, as I told you कि अर्थ crust जो है किससे बना है? ह्यूज स्लैब से बना है जिन्हें हम प्लेट्स कहते थे. एंड ये प्लेट्स एक दूसरे के साथ फिट होती है एक जिगसॉ पजल की तरह. When two plates collide, जब दो प्लेट्स आपस में कोलाइड करती हैं तो क्या एक सेक्शन जो है स्लाइड का वो दूसरे स्लाइड के ऊपर आ जाता है, एंड द वन बीनीथ इज पुश डाउन, नीचे वाला जो है नीचे की तरफ पुश होता है. सो इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो मैग्मा होता है वो स्क्वीज्ड हो जाता है, एंड व्हेन प्रेशर बिल्ड्स अप, एंड जब इनके बीच में प्रेशर बनता है तो वो मैग्मा जो है इरप्ट करता है.
लिक्विड रॉक्स, गैसेस, ये सब जो फ्लो आउट करेगा एक वॉल्केनो के थ्रू, दैट इज कॉल्ड लावा। ठीक है। फ्रेश लावा की जो रेंज होती है टेम्परेचर की, वो होती है 1300 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर आप सेल्सियस स्केल पे इसकी रीडिंग देखेंगे, दैट इज 700 डिग्री सेल्सियस टू 1200 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर होता है फ्रेश लावा का, एंड बिल्कुल रेड हॉट कलर का एक ग्लो कर रहा होता है, और टू वाइट हॉट एज इट फ्लोज। ऑलराइट, चलो। नाउ इफेक्ट्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं? नंबर 1, वॉल्केनोज जो है सुनामीज को, फ्लैश फ्लड्स, अर्थक्वेक, मड फ्लोज, रॉक फ्लोज, जितने भी अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स है, इनको ट्रिगर करते हैं वॉल्केनोज। सेकेंडली, डार्क स्काई देखने को मिलता है, सीवियर विंड्स, हैवी रेनफॉल, ये सब भी क्या हो सकता है इरप्शन के बाद, अराउंड कुछ मंथ्स के बाद हमें देखने को मिलता है। फिर उसके बाद पॉइजनस गैसेस जितनी है, ऑलराइट, जो पॉइजनस गैसेस हैं वो इरप्ट होती हैं, वो भी प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से द पीपल एंड द एनिमल्स कुड बी डाई। बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं एंड द पीपल बिकम होमलेस। ऑल्सो क्लाउड्स ऑफ एश, एशेस के जो क्लाउड्स हैं वो प्लांट्स को कवर कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो प्लांट्स इनएडिबल हो जाते हैं, वी कुड नॉट कीप देम फर्दर। पीपल आर किल्ड, पीपल को क्या मार दिया जाता है, ठीक है, आफ्टर कंटेमिनेटेड प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स से मार नहीं दिया जाता, बेसिकली प्लांट्स कंटेमिनेटेड हो चुके हैं, आप उन्हें खा नहीं सकते हो, एंड प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड फॉर द ह्यूमन बीइंग्स एंड द अदर एनिमल्स। सो जब खाना ही नहीं रहेगा, सो हाउ द पीपल और द एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड सर्वाइव। ठीक है। देन द डस्ट की वजह से निमोनिया हो सकता है, इलनेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलनेसेस could be there to the survivors due to the dust which is produced along with the volcanic eruption. Now, amazing fact they have given you that on 26 December 2004, 26 December 2004 में एक earthquake जिसकी measuring थी 9.0 on the Richter scale hits of the coast of Indonesia. ठीक है, where did it hit? On the coast of Indonesia. Alright? एंड इस अर्थक्वेक की वजह से फिर एक मैसिव सुनामी जो थी वो ट्रिगर हुई, जिसकी वजह से वाइड स्प्रेड डेथ एंड डिस्ट्रक्शन हुआ अक्रॉस 11 कंट्रीज। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच वी हैव इज दैट इज अबाउट सुनामी। सुनामी इज अगेन अ नेचुरल डिजास्टर, एंड ये टर्म सुनामी है, इसका जो ओरिजिन हुआ है दैट इज इन द जापानीज लैंग्वेज, एंड इंग्लिश मीनिंग इसका क्या है? सेस्मिक सी वेव्स। सुनामी इज हाई टाइडल वेव्स। ठीक है, सुनामी क्या होती है? हाई टाइड वेव्स होती हैं जो कि मोर देन 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करती है, एंड ये स्टॉर्म वेव्स जो है सी से अराइज होती हैं, एंड क्या रोल होते हुए किधर की तरफ आती है? सी शोर की तरफ आती है, जिसकी वजह से लाइफ एंड प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन होता है विच इज अराउंड दैट एरिया। Now, what are the causes of tsunami? तो सुनामी के causes है the drop down and up thrust of the earth crust during earthquake. एक earthquake के दौरान क्या होता है? जब हमारे earth crust का जो thrust है वो up and down इस तरीके से होता है, वहाँ पे सुनामी आपकी cause होती है। एंड मेजॉरिटी, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ सुनामीज की वजह से क्या होता है, जो होते हैं वो किसकी वजह से होता है? ओशंस में अर्थक्वेक आने की वजह से। यानी कि मेजॉरिटी ऑफ सुनामीज का जो कारण है वो है ओशियंस में अर्थक्वेक जो आता है, उसकी वजह से सुनामीज ट्रिगर हो जाती है। अंडर सी वॉल्केनिक इरप्शंस, ठीक है, अंडर सी वॉल्केनिक इरप्शंस जो है क्या, किसके? सिग्निफिकेंट मैग्नीट्यूड के, अच्छे खासे मैग्नीट्यूड के अगर अंडर सी वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं तो उससे भी सुनामीज जनरेट होती हैं। एंड ऑल्सो अ लार्ज स्केल अंडर सी लैंडस्लाइड, अगर एक बहुत बड़े स्केल पर अंडर सी लैंडस्लाइड हो रही है, दैट ऑल्सो ट्रिगर व्हाट? सुनामी। ऑलराइट, चलो। Next, we have flood and drought. So first of all, we have flood. Flood is overflow of a large volume of water onto a normally dry land. एक normally dry land है, उस पे जब बहुत large volume of water का overflow होता है, that causes flood. And flood कब होते हैं? जब overflowing water जो है land के साथ submerged हो जाता है। ठीक है, फ्लड्स ऑफनली काफी डैमेजिंग एंड डिवास्टेटिंग होते हैं। ठीक है, दे किल अ लॉट ऑफ पीपल एंड ऑल्सो इट डैमेजेस हाउसेस एंड क्रॉप्स। नाउ फ्लड्स कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 नेचुरल फ्लड, अदर इज व्हाट? कैटास्ट्रोफिक फ्लड्स। नेचुरल फ्लड्स आपके नेचुरली होते हैं, ठीक है, यानी कि जब एक ह्यूज
ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है रिवर्स, लेक, ओशियन या हैवी रेन ऑफ डाउनपोर, साइक्लोन, सुनामीज एक्सेट्रा, यानी कि ये डिफरेंट कारण है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर नेचुरली ओवरफ्लो करने लगे ऑन द लैंड, उसे कहा जाता है नेचुरल फ्लड। ठीक है। एंड कैटास्ट्रॉफिक फ्लड्स कब होते हैं? ये आपके अनएक्सपेक्टेड इवेंट से हो सकते हैं, जैसे कि डैम ब्रेकेज, कहीं जो डैम्स होते हैं वो ब्रेक हो जाए, उसकी वजह से जब सारा पानी लैंड्स पे आ जाता है, दैट कॉजेज व्हाट? कैटास्ट्रॉफिक फ्लड। कॉजेज ऑफ फ्लड, फ्लड के कॉजेज यहाँ पे गिवन है, हैवी रेनफॉल, बहुत ज्यादा जब बारिश हो रही है, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन, हैवी स्नो मेल्टिंग, ऑलराइट, या हाई टाइड, स्टॉर्म, साइक्लोन्स एक्सेट्रा, वो भी कहाँ पे? कोस्टल एरियाज में। अमेजिंग फैक्ट दे हैव गिवन यू दैट द नेम वोल्केनो, ये जो वोल्केनो डिजास्टर था, इसका जो नेम है, इसका ओरिजिन कहाँ से आया है? वल्कन नेम से आया है। एंड वल्कन कौन थे? गॉड ऑफ फायर थे इन द रोमन माइथोलॉजी। रोमन माइथोलॉजी में वल्कन वाज अ गॉड ऑफ फायर, एंड वहां से क्या इस वर्ड का ओरिजिन हुआ है, नोन एज वोल्केनो। Next, we have drought. When a particular area, see, drought is just the reverse of flood. फ्लड में तो क्या, एक एक्सेसिव अमाउंट में जब बारिश होती है या पानी क्या हो जाता है, एक एरिया पे सबमर्ज हो जाता है लैंड पर, उसे हम फ्लड कहते हैं। बट जब किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे रेनफॉल हो ही नहीं रहा है, इट रिसीव्स नो रे, कि बहुत ही लेस रेनफॉल हो रहा है देन द नॉर्मल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक बहुत लंबे समय से नॉर्मल रेनफॉल से बहुत ही कम या बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं होता अगर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, देन इट इज सेड टू बी अफेक्टेड बाय ड्रॉट, जैसे कहते हैं सूखा पड़ जाना। ठीक है। और अब इस पे क्या होता है, हॉट ड्राई विंड्स, गर्म और बिल्कुल सूखी हवाएं चलती है, काफी हाई टेम्परेचर होता है, मॉइस्चर जो है बिल्कुल इवेपोरेट हो जाता है ग्राउंड पे से, एंड इस सभी की वजह से क्या होती है, ड्रॉट कंडीशंस होती है। यू कैन सी दिस इज ऑल व्हाट द ड्रॉट कंडीशन। ऑलराइट, चलो, now let us recall the chapter. So earthquake happens, earthquake कब होता है? When the two blocks of the earth के जब दो blocks suddenly slip past one another, then the drought occurs, or earthquake occurs. Then the location, अर्थ सरफेस से बिल्कुल बिलो जो लोकेशन है जहाँ पे earthquake स्टार्ट होता है, that is called hypocenter. Alright, the location directly above, ठीक है, hypocenter के just above जो लोकेशन होती है on the surface of earth, that is called epicenter. अर्थ पे 4 मेजर लेयर्स है, इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। देन अर्थक्वेक्स को रिकॉर्ड किया जाता है कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके, जिन्हें हम क्या कहते हैं, वी कॉल देम सीस्मोग्राफ्स। ठीक है। अर्थक्वेक के साइज को क्या कहा जाता है? मैग्नीट्यूड। एंड द लिक्विड रॉक्स, वो सारे लिक्विड रॉक्स या गैसेस जो एक वोल्केनो के थ्रू बाहर फ्लो करते हैं, दैट इज कॉल्ड लावा। सुनामी, सुनामी क्या है? सुनामी हाई टाइडल वेव्स होती है जो अराउंड 800 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा स्पीड पर ट्रैवल करती है। फ्लड क्या है? ओवरफ्लो ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर। जब एक ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर ओवरफ्लो करता है नॉर्मली ड्राई लैंड पे, देन इट कॉजेस फ्लड, और इट इज सेड टू बी फ्लड। एंड द लास्ट, व्हेन अ पर्टिकुलर रीजन, जब एक पर्टिकुलर रीजन पे नो रेन, या तो बिल्कुल भी बारिश नहीं है, या एक नॉर्मल रेंज से बहुत ही कम बारिश हो रही है फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड, then it is said to be drought affected region or the drought affected area. All right. So the chapter is completed. These were the different types of natural disasters which we or our planet suffers. All right. I hope you must have understood the chapter. Now let's meet you very soon in the next session. Till then, keep going well, learn well, and thanks to